Hello and welcome back to another episode of the OG show with the OG panel, the OG host and the OG shirt. And today we are here to talk about a very hot topic, a very exciting topic. As you all know, we are playing Manchester City, our arch rivals, our noisy neighbors, big oil money clubs, Premier League, possible contenders, and past few season Premier League toppers. So we are going to discuss some points here right now, and I have my favorite people here with me. I have Sandeep Bhai, I have Vijit Bhai, and I have Saksham. And also, as always, Kushagra is behind the scenes helping us with the stats. So हाँ, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक जगह तो हम ऑलरेडी हार चुके हैं, विच इज द स्टैट्स फ्रंट. स्टैटिस्टिकली हमको बिल्कुल पेला जा चुका है, और स्टैट से कहता है कि सिटी परहैप्स हैज द हाईएस्ट क्लीन शीट परसेंटेज दिस गेम वीक इफ यू प्ले एफपीएल. तो ये भी आपके लिए थोड़ा सा स्टैट रहेगा. और मैनचेस्टर यूनाइटेड परहैप्स वी हैव ओनली 10% प्रोबेबिलिटी ऑफ कीपिंग अ क्लीन शीट. सिटी हैज ओवर 50%, और स्टैटिस्टिकली वी आर लूजिंग अराउंड 2-1 और 3-1. तो बहुत बुरी तरह हमको पेल रहे हैं स्टैट्स, लेकिन हम इस बात को एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, स्टैट्स में वी आर वीक ऑन द स्टैट्स फ्रंट, बट इट्स अ डर्बी, इट्स लाइक अ फाइनल, एनीथिंग कैन हैपन. देयर इज अ लॉट ऑफ एड्रेनलिन rush, or anything can happen in this match. So yeah, moving on to the discussions. Ash, I like to start with Sandeep Bhai. Sandeep Bhai, so as you know that our past managers have all lost their first game against City. Do you think ETS perhaps can turn it around? And what do you think his game plan is going to be? Because City, again, possession-based football, Pep Guardiola, in Bayern, ETS knows him from Bayern. They were colleagues there. And is he going to play a counter-attacking team like Ole did against Pep and had a really good result? So what do you think about this? So I think when it's derbies, stats go out of the window. So and looking at the past managers, the past teams, I have never been so confident about a defense. Okay, our defense in the past 6-7 seasons has never been so good. So I think they're really high on confidence right now, and they will be buzzing for the challenge against City because they have beaten Arsenal, Liverpool. We must not forget that Arsenal are top of the league and have only lost one game, which is against us, and Liverpool are a very good side. So I won't say that Eric Ten Hag will win, but I will say that he will put everything not to lose. And I think he will be setting up a counter-attacking team. I think there will be, we will be sitting back and we will have to defend a lot and run a lot. But again, we have the our counter-attack is really smooth and we can easily hurt teams on the break. So I think that comes in. And Eric Ten Hag knows about Pep from his earlier days, as you said. And I think I will be relishing the fact that Martinez will be up against Haaland and what it brings. And I would like to tag Graham Souness in a tweet and just say, "See, you were wrong." So I would love to see the challenge. I think everyone in the United team and in the locker room and in the fan base, everyone is excited for it. We are like last two seasons when we faced Liverpool and City, it was a given that we were going to lose. It was just that we should not be humiliated and we should play well. But this time, I don't think we are going into the match thinking that we will lose. I think there is a chance that we will take a result away from that match, either a draw or a win. And yes, counter attack will be a big part of that. So Sandeep, I think we are going to play counter attacking. He's very hopeful about this. He's looking forward to it. And yeah, game Graham Souness, he said about Martinez and his height and whatever. भाई मार्टिनेज भले ही छोटा हो, बट उसका डिफेंस देखो, साला वैन डाइक का देखो. एटलीस्ट वो अपने ऑरा से डिफेंड नहीं कर रहा है, अपनी जान लगा रहा है बंदा. सर फाड़ रहा है अपना, टांग फाड़ रहा है अपना, कूद रहा है, छलांग लगा रहा है, जान लगा रहा है अपनी. एनीवेज, अभिजीत भाई, कमिंग टू यू. आपने अपने आप ही अपना माइक ऑन कर लिया, शायद आपको पता चल गया कि मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ. ये इंट्यूशन हो, हम दोनों का कनेक्शन हो गया एक अलग लेवल पे. तो अभिजीत भाई, as you shared that report about Ronaldo's mental health, and with this big game coming up, do you think Ronaldo is going to play a part in this match? I think definitely not. मुझे नहीं लगता कि वो स्टार्ट करेगा इन दे करेगा. फिर भी तो हम उसको यूज करेंगे, स्ट्रेटेजिकली यूज करेंगे.
he will be part of the game, but not more than 45 to 50 minutes, that more. क्योंकि ETH को मतलब ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो वर्क रेट और ज्यादा मतलब अपने टैक्टिक्स को परफॉर्म करे, ना कि वो एक मतलब आउट परफॉर्म करे. City will definitely dominate us because they are settled in team. They know the tactics how they want the Pep to perform. तो डेफिनेटली एक मतलब हमारे एक मतलब वीक पॉइंट ना बन जाए रोनाल्डो इस तरह. तो डेफिनेटली आई वुड से रोनाल्डो तो स्टार्ट नहीं करेगा. इलेंगा हिज आई थिंक विल बी स्टार्टिंग फॉर द गेम. रोनाल्डो तो आफ्टर द हाफ टाइम और बिफोर द हाफ टाइम he may be substituted. So interesting. Abhijit bhai is saying that Ilanga perhaps will start. So Abhijit bhai, I want to know about your preferred front three for this game. Definitely Sancho or Anthony will be on the wings, and I would prefer Ilanga as in the center midfield because Ilanga will we have advantage from him actually, because he can stretch the defense and he is very quick in the runs. जब भी हम counter करेंगे, जब हमें space मिलेगा, तो definitely it will be we will outrun the defense of City. और हमारे tactics और मतलब he fits there definitely. So I would go for Ilanga instead of Ronaldo. So you are playing Ilanga as a number 9, false 9 perhaps. Yes. Yeah, that's very interesting. Given that we have Martial and Rashford out, they're just drawing training, but I don't think they're going to start. So Ilanga, Sancho, and Anthony is a very exciting front three by Abhijit bhai. So Saksham, coming to you, when we talk about Manchester Derby, the recent success of ours come into our minds, and especially that of McTominay. And we have McTominay in red hot form as always, facing against Eric Haaland. Our McTominay is basically like I'm forgetting the name. It's like who? It's like who? Roy Keane, yes, it's like Roy Keane against Haaland's daddy. Now we have Eric Haaland himself. So do you think McTominay is going to do that to Eric Haaland? And by that I mean, do you think McTominay is going to start over Casemiro perhaps? And yes, this is a stat that I have been given that Haaland perhaps has scored 2 Premier League hat-tricks in his last 2 games at Etihad. And we are playing at Etihad, so that is going to be a big thing to watch out. So yeah, first tell me about this McTominay versus Casemiro scene. मैक्टोमिनी एंड कैसेमीरो, ये इंटरेस्टिंग होगा कि टेन हाग किसको पिक करेगा, क्योंकि मैक्टोमिनी जो मैंने तो उसे 5 रुपए में बेच दिया था, बट उसने उसके बाद से जो फॉर्म पिक करी है भाई, वो नेक्स्ट लेवल पे चला गया. उसको ड्रॉप करना ही बहुत मुश्किल हो गया है. वो मतलब कैसेमीरो से अच्छा परफॉर्म कर रहा है. ये कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है कि कैसेमीरो का टाइम मिला नहीं है, प्रीमियर लीग में सेटल कर रहा है, बट आई वोंट ड्रॉप मैक्टोमिनी. रही बात उसकी मैक्टोमिनी और हालैंड की बैटल की, क्या वो रॉय कीन को प्राउड एक वो दे पाएगा मोमेंट कि हाँ मैंने ऐसा करा. वैसे आई डोंट वांट कि एक प्लेयर के साथ ऐसा हो, बट आई थिंक लिसांड्रो मार्टिनेज वुड बी ओनली इनफ टू कीप हालैंड साइलेंट. भाई वो प्लेयर अलग है. एवरीबॉडी प्रेजिंग कि हालैंड हालैंड भाई वो प्रीमियर लीग में हैट्रिक कर रहा है, ये कर रहा है. मार्टिनेज उसकी हाइट और उसके जो वो आयक्स से आया, कोई ऐसे एरेदिवाइस से अर्जेंटीना का सेंटर बैक, ही इज प्लेइंग वेरी वेरी गुड. ही इज माय मतलब फेवरेट साइनिंग जो हमने करी है. तो आई थिंक मतलब, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब फरहान और मार्टिनेज आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर वेरी वेल. तो डिफेंसिवली हम थोड़ा स्टेबल होंगे. हाँ, क्लीन शीट शायद ना आए, जो आपने बताया कि स्टैट 10% का रहेगा. आई वोंट रिस्क कैसेमीरो इन दिस गेम बिकॉज अभी इंटरनेशनल ब्रेक से वो सीधा आया है, और उसकी नेशंस लीग की सबको पता है किस तरह से गेम की पेस रहती है, फिर प्रीमियर लीग की पेस अलग है. कैसेमीरो अभी पूरा सेटल्ड इन भी नहीं. तो आई विल स्टार्ट मैक्टोमिनी. आई डोंट थिंक कि अगर टेन हाग कैसेमीरो मैक्टोमिनी दोनों को स्टार्ट करता है, तो फिर व्हाट हैव वी चेंज फ्रॉम द लास्ट मैनेजर्स, जो हम एक डबल पिवट खिलाते थे 2 CDMs वाला, तो उस समय क्या ही चेंज कर. तो मतलब, और हम बॉल तो इतना रखेंगे नहीं अपने पास, तो वी नीड एरिक्सन एंड ब्रूनो बोथ इन द मिडफील्ड, तो कि ताकि वो थोड़ी बॉल चला पाए और हम उन्हें काउंटर्स पे हिट कर पाए. इसलिए आई थिंक आई विल स्टार्ट मैक्टोमिनी ओवर हिम. इफ ही इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, उसको हटाओ, कैसेमीरो लाओ या फिर दोनों खिलाओ, बिकॉज आपको थोड़ा सोक इन प्रेशर करके आप काउंटर अटैकिंग पे जाओ. बट इट्स नॉट दैट कि आई वोंट किसी सिनेरियो में आई वोंट बेंच मैक्टोमिनी जिस फॉर्म में वो चल रहा है. Plus, I think we have an added advantage as fullbacks against Manchester City. हमारे fullbacks एक बहुत अच्छी फॉर्म में है as compared to अगर उन्हें विंगर्स को कंट्रोल करना होगा. I don't think
सिटी में माहरेज खेलता है विंग पे, और उनकी विंग पे मेनली कौन खेलता है? लेफ्ट विंग पे कौन? ग्रिलिश या फोर्डन? फोर्डन मेनली। फोर्डन मेनली। तो आई थिंक कि डैलेट और मलाशिया दोनों को साइलेंट करने के लिए रहेंगे वहां पे। हमारे फुल बैक बहुत अच्छी फॉर्म में है, मलाशिया स्पेशली एंड डैलेट तो चढ़ते हैं, कंधे देते हैं एक दूसरे को, पूरी स्पिरिट है। तो वो सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स है जो एक मतलब एज संदीप भाई सेड की डर्बी में आपके स्टैट्स मैटर नहीं करते, इट्स अबाउट पैशन एंड हु वांट्स टू गिव हिज हार्ट आउट द मोस्ट। तो इस टीम में वो दिख रहा है, एंड आई होप कि हालैंड को साइलेंट करते हैं। और वैसा टैकल करना है तो कर दो एक अभी थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि वो रुक नहीं रहा है बंदा, वो रिकॉर्ड्स तोड़ देगा। पर देखते हैं, लेट्स सी। गो मैकटोमिनी। So Saksham Bhai has proven that he is a United fan and he is United by blood and by DNA. और उन्होंने बिल्कुल वो चीज किया जो कि यूनाइटेड करता है, एक प्लेयर को 5 रुपए में बेच दिया और फिर 100 मिलियन लेके दरवाजे पे खड़े हैं कि भाई हमको मैकटोमिनी दे दो। That was nice. और अब मैकटोमिनी को 100 मिलियन को वापस खरीदने में बैठे हुए हो। तो टिपिकल यूनाइटेड फैन स्टफ, टिपिकल यूनाइटेड स्टफ। एनीवेज, या मूविंग ऑन, संदीप भाई, या कमिंग टू यू। सो या एक स्टार्ट में ये भी आया था कि भाई केडीबी हैज नेवर वन पीएल मैन ऑफ द पीएल प्लेयर ऑफ द मंथ award, जबकि KDB has been very good for City, and perhaps some of these kids are calling him the best in the world right now and best to ever step foot on the midfield. तो बहुत फार फेच क्लेम्स हैं बच्चों के आजकल के। तो आप क्या बोलना चाहोगे बच्चों को कि भाई बच्चा ऐसा नहीं है, तुम थोड़ा गलत समझ रहे हो, बढ़िया प्लेयर है। बट वी हैव ब्रूनो एज वेल, and Bruno, since his joining in January of 2020, I think, yeah, he has the most goal involvements, even outscoring Messi. So what would you like to say on this? So KDB versus Bruno is a very hot topic to debate on. I think personal impact जो बोलोगे तुम, I think Bruno had that more in a struggling United side. If he had joined the City side, he would be flying high, like KDB is. KDB has joined us. KDB is in a settled team. He has the system around him. Bruno has had 3 managers, changed since he has come. So, but last season his form had dropped. But this season we can see again under a good coach, under good training and coaching, he can be the player he wants. And by the way, going back to that topic you said against McTominay versus Casemiro, I would just like to add this one thing. I think both can play in this game because we don't have Rashford or Martial as a guaranteed starter because of their injuries. I think the back five along with De Gea picks itself, and I think McTominay and Casemiro both can do a work of the Terminator. And you play Eriksen in front of them and Bruno as a false nine with Sancho and Anthony on the wings. I think that is one way to go forward with this match, with this fixture, because if Martial or Rashford are not up to starting the game, we can start with the false nine in Bruno, and in counter attacks, that's all that is needed to one final pass, one final ball to the runner in Sancho and Anthony, and they can finish. Sancho and Anthony both can finish. So I think that would be great to see. And coming back to Bruno and KDB, I think Bruno, for me, we might be biased, but I think Bruno slightly edges past over KDB, and Kevin De Bruyne has won Player of the Tournaments multiple times. So Player of the Month doesn't really matter for him. He has been a PFA Player of the Season multiple times, and he's class. He's class, even though he's a rival. He's class. The Belgian team has not done well so far for their golden generation, but I think Kevin De Bruyne is really class, and under Ten Hag he has fulfilled his potential. He has reached his highest potential, I feel, and it might go on for another 1 or 2 seasons. But there will be drop off. But Bruno is on the rise, so that way. So Sandeep Bhai still has some faith in. He prefers KDB, and all credit to KDB. KDB is yes one of the best that there is currently playing. And Belgium का golden era से मेरे को याद आया एक और टीम है जिसका golden era चल रहा है, और वो golden era में 2 बार अपने से नीचे finish हुआ है। कौन सा टीम है वो आप लोग बताओगे मेरे को, मैं नहीं बताऊंगा। क्या बोल रहे अभिजीत हो? भाई, मैं कह रहा हूँ एक और टीम ऐसा है जो कि गोल्डन एरा में 2 बार अपने से नीचे फिनिश हुआ है। कौन सा टीम है वो? कुछ नहीं। अरे यार लिवरपूल। कुशाग्रा पीछे, यस
अरे अभिजीत भाई जो खराब कर दिया। नहीं एनीवेज हाँ। अभिजीत भाई अब आप अभी मेरे को बताओगे, अब आपने मेरा कंटेंट बिगाड़ दिया, मेरे को और कंटेंट दोगे। अब आप मेरे को ये बताओ ये स्टैट्स हैज शोन दैट हालैंड ज्यादा बॉल को टच नहीं करता है, जो कि ट्रू है भाई। वो साला सांड है, उसके पास बॉक्स में बॉल आती है, वो साला कहीं से भी हवा में उड़ के जैसे तैसे करके बॉल को टच करेगा, बॉल छूते ही गोली बन जाएगी, गोली की तरह घुस जाएगी, गोल में छेद कर देगी, फाड़ देगी बिल्कुल। तो भाई अब पेप इज अ टिकी टाका पर्सन, बट सिंस हालैंड हैज कम इनटू द टीम, उसका टिकी टाका से ज्यादा पास इट टू हालैंड वाला सीन रहा है, बिकॉज अब उसको ही आई डोंट थिंक इज रिक्वायर्ड टू प्ले पास एंड पास एंड पास एंड पास एंड पास, इधर स्पेस उधर स्पेस, जस्ट पास इट टू हालैंड मैन एंड ही इज गोइंग टू स्कोर इन द बॉक्स. And we know that we have Varane and we have Martinez who are capable of defending those crosses, those dead balls in the box. So, do you think that they are going to manage to keep Haaland quiet? क्या Haaland एक भी गोल नहीं मारेगा अगले गेम में, या फिर पेप का टैक्टिक जो है पास टू Haaland वाला काम आ जाएगा and Haaland is going to score? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड वांट टू से दैट, मतलब एक बोलना चाहूंगा कि हम वी शुड नॉट हैव द फियर ऑफ हालैंड इन द माइंड। वो एक बस गोल स्कोरिंग मशीन है ये, हम उससे इंटिमिडेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भी बड़ा प्लेयर है, स्कोर कर रहा है, बहुत अच्छा खेल रहा है, बहुत स्कोर कर रहा है, फ्यूचर स्टार, ऐसा कुछ हाइप, उसका हाइप अपने माइंड में नहीं करना चाहिए, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड आई थिंक सिटी के लिए वो एक की प्लेयर रहेगा, क्योंकि अब मतलब वो मतलब टचिस में ज़्यादा टचिस नहीं करेगा बॉक्स में, या फिर किधर भी मतलब डिफेंस मतलब मिडफील्ड में नहीं आएगा कि वो हेल्प करेगा। तो वो एक 3-4 टचेस वो देगा एक बॉक्स में, और उसी में उसमें 4-5 गोल वो कर देगा। तो डेफिनेटली पेप के लिए एक मतलब एक टेलिस्मैन है, वो एक अच्छा प्लेयर है। तो आई वुड से टू स्टॉप हालैंड, आई वुड तो उसको मतलब बॉल ही मत दो, मतलब उसको अगर बिल्डअप कर रहे हो, जब जब सिटी कर रही है, तो आप उसको बॉल ही मत, मतलब उसको रोक दो, फ्रस्ट्रेट करो। अगर आपने गेंद लो पिछले उसको, कुछ पकड़ के मैच, बच जाओ. हाँ हाँ, उसको पकड़ लो, एक बार मार्क कर दो, जैसे मेसी को हमने पाक जीसुम ने कैसे मार्कअप किया था, सेम हम उसको एक मार्कअप भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली वो एक फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, मतलब वो गलती करेगा, एरर करेगा, और डेफिनेटली वुड बी एडवांटेज फॉर हिज, और उसका उनका अटैक बनते बनते बिगड़ जाएगा। डेफिनेटली हम उनको फ्रस्ट्रेट कर सकते हैं, अगर अगर हालांड को अगर हमने चुप किया तो। इसमें आई थिंक मैकटोमिनी और लिसांड्रो मार्टिनेज या फिर वरान, ये डेफिनेटली एक मतलब एक की प्लेयर्स होंगे उसको रोकने के लिए। तो इवन फोर्डेन को भी आपको मतलब काम रखना है कि भाई डैलट तो वो काम कर ही देगा, क्योंकि इज इन द फॉर्म। रही बात कसर की केडीबी की, तो अगर कैसिमिरो खेलेगा तो डेफिनेटली केडीबी को पॉकेट कर देगा। अगर कैसिमिरो खेलना है, अगर एटीएस के मन में है कि भाई उसको खेलना है, तो डेफिनेटली खेलेगा। लेकिन मैं एक बात संदीप भाई से मतलब थोड़ा सा जो बोला उसने कि आपने बोला कि डबल पिवोट में खेलेंगे, डेफिनेटली नहीं खेलेंगे शायद, क्योंकि अगर हम लो ब्लॉक खेल रहे हैं तो ही डबल पिवोट करेंगे, कैसिमिरो और स्कॉट मैकटम। तो मुझे नहीं लगता कि हम ऐसा नहीं करेंगे। वो ज़्यादा मतलब एम्बिग्यूटी क्रिएट करेगा मिडफील्ड में कि भाई बेंच पे कोई नहीं रहेगा। दोनों ही अगर आउट परफॉर्म किए गए तो क्या करोगे आप? किसको लाओगे? वीडीबी तो नहीं है, तो डेफिनेटली स्कॉट मैकटोमिनी और एक एरिक्सन और शायद ब्रूनो खेलेगा। ये हुई ना बात अभिजीत भाई, ये आया ना मसाला, अब आया मजा. तो आप अगर आपको लगता है कि मैकटोमिनी क्या स्टार्ट करेंगे तो हमको कमेंट्स में बताइए, व्हाट्सएप में बताइए. नहीं लगता तो तब भी बताइए, लेकिन बताइए जरूर, क्योंकि आप लोग कमेंट में आजकल बहुत चुप हैं. क्यों हैं चुप ऐसा, मैं जानना चाहूंगा. एनीवेज, सक्षम भाई, अब सक्षम भाई आपके आते आते तक मेरा सारा पिटारा खत्म हो चुका है. लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंगली सिटी हैज सम इंजरीज, वी आल्सो हैव सम इंजरी. तो सिटी का डिफेंस में दे डोंट हैव देयर प्रेफर्ड starters in the defense. So do you think we can exploit that fact, and especially given to the fact that we are perhaps going to play a counter-attacking team with a false nine, who do you think is going to be the key player for us कि भाई वो player जो है सिटी की नाक में दम कर देगा बिल्कुल? हमारा एरिक्सन, आई थिंक एरिक्सन जो इस तरह से लाइन्स को कट करेगा डिफेंस को, क्योंकि आई थिंक अगर उनको जॉन स्टोन्स इंजर्ड है राइट, और अकांजी खेलेगा शायद, अकांजी और रूबन डियास,
आई थिंक लपोर्ते भी इंजर्ड है. आई डोंट नो कि लपोर्ते की क्या सिचुएशन है, बट आई थिंक रूबन डियास एंड अकांजी वुड स्टार्ट. स्टोन्स भी इंजर्ड है. स्टोन्स इंजर्ड है एंड लपोर्ते का क्या? लपोर्ट भी इंजर्ड है आदिश. हाँ, तो आई थिंक फिर तो वही रूबन डियास अकांजी. एंड आई थिंक उसको सेंचो को थोड़ा ट्रेनिंग ड्रिल याद आ जाए कि अकांजी को कैसे खोलता था डॉर्टमुंड में, और कर दे वहां पे स्कोर. तो आई थिंक एरिक्सन तो वहां पे हमारा पिवटल रहेगा ही, जो पूरा नाक में दम करके रखेगा. एंड जैसे मिडफील्ड की बात हुई, क्योंकि मिडफील्ड एक इंटरेस्टिंग यहाँ पे है कि हम किसको स्टार्ट करेंगे. वी नो कि हम डिफेंस को तो अपना टच करेंगे नहीं, हम उसी बैक फोर के साथ जाएंगे. अटैक में आई थिंक सैंचो एंड एंटनी श्योरली स्टार्ट्स. इफ मार्शियल इज फिट आई विल पर्सनली स्टार्ट मार्शियल, क्योंकि वो जिस तरह से बॉल होल्ड करके वहां पे विंग्स क्रिएट कर सकता है ना, स्पेसेस, और जो हम पेस पे हिट कर सकते हैं. तो आई विल स्टार्ट हिम. बट आई थिंक वो भी अटैक में भी है कि रैशफोर्ड आता है तो रैशफोर्ड सैंचो एंड एंटनी, दे वुड बी द फ्रंट थ्री. मिडफील्ड थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है कि हम पूरा गेम, हमारा जो गेम प्लान होगा कि हम किस तरह से गेम को अप्रोच कर रहे हैं, दैट वुड बी बिल्ट अराउंड मिडफील्ड. जिस तरह के हमने मिडफील्ड स्टार्ट करी, अगर हमने कैसेमीरो, मैक्टोमिनी, एरिक्सन स्टार्ट कर दिया, ब्रूनो को फॉल्सिंग करा, तो एक बहुत डिफरेंट अप्रोच है. तो मिडफील्ड यहाँ पे बहुत पिवटल है. एंड आई वांट एरिक्सन टू ड्रॉप थोड़ा डीप. वो हल्का सा जब डीप एक वो सेंटर मिडफील्ड वाले प्रॉपर पोजीशन पे खेलता है, तो वो पासेस वहां पे चलाना, ट्रायंगल्स बनना, वो सारी चीजें काफी अच्छा लिजांड्रो के साथ लिंक अप, वहां पे मैक्टोमिनी को स्पेस मिलता है, ब्रूनो रन बिहाइंड निकालता है. तो आई थिंक एरिक्सन बहुत ही पिवटल होगा इस गेम के लिए. प्लस आई एज आई सेड कि मार्शियल अगर फिट हो, आई होप, तो आई थिंक ही कैन मेक अ डिफरेंस, अ लॉट डिफरेंस. वो आइस कोल्ड मार्शियल वाला परफॉर्मेंस तो वी क्रेव फॉर दैट एवरी ईयर. पता नहीं वो वापस कब चला जाए. तो लेट्स सी क्या होता है. प्लस यही है. एंड आई थिंक हमारे भी हैरी मैगवायर भैया इंजर्ड है, सो इतना तो अच्छी बात हुई ना यार, है. ये तो अच्छी बात हुई. ये सिटी के लिए एक इंजरी है बहुत बड़ी, तो देखते हैं क्या होता है. ओह, सिटी के पास बहुत ही डिफेंडर्स इंजर्ड हैं, उनमें से एक है हैरी मैगवायर. हैरी मैगवायर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर सिटी के इंजर्ड हो चुके हैं. तो हाँ भाई, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग गेम. इट इज गोइंग टू बी वेरी बिग गेम. मैनचेस्टर वर्सेस मैनचेस्टर, टकला वर्सेस टकला, ऑयल मनी वर्सेस उधार का मनी. it'll be fun to see who is going to win this battle. हाँ, अब मेरा क्वेश्चन आ चुका है जो कि मैं हर बार पूछता हूँ. ये क्वेश्चन मजेदार है, कंट्रोवर्शियल नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन मजेदार है. तो I'll start with अभिजीत भाई, क्योंकि सबसे ज्यादा वही मुस्कुरा रहे हैं. अभिजीत भाई, as you know, we have defeated current Premier League toppers Arsenal. We have defeated Liverpool, who are our arch rivals first off, और जो कि लास्ट ईयर जिन्होंने हमको बिल्कुल बर्बाद कर दिया था, और उनका भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है. नेवरदलेस उनका सीजन कैसे भी स्टार्ट करा हो, दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट. हमने उनको भी हरा दिया. नाउ वी आर फेसिंग मैनचेस्टर सिटी, जो कि एक अगला अग्नि परीक्षा होगी हमारे बंदों के लिए और एरिक टेन हाग के लिए. If we win against Manchester City, do you think we are in contention for Premier League? डेफिनेटली नॉट. अगर आपने पिछले कुछ मैच देखे होंगे, तो जब हम ब्रेंटफोर्ड को देखकर, ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट 4-0 या फिर जो हारे थे, तो मुझे तो एक्सपेक्ट करता था कि टॉप 10 भी मतलब एचयू होगा कि नहीं वो नहीं. लेकिन जो रिसेंट फॉर्म लग रहा है कि खेले जो अच्छा, लिवरपूल के अगेंस्ट या फिर आर्सेनल के अगेंस्ट जो जीते हैं हमने अच्छे मतलब इम्प्रूव करके, तो डेफिनेटली टॉप 4 तो अचीवेबल है. प्रीमियर लीग तो अभी तो बहुत मतलब बहुत ही दूर है. डेफिनेटली आई थिंक ये डर्बी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट मैच है यूनाइटेड के लिए, बिकॉज अगर आप देखो जो हमने जीता है आर्सेनल के अगेंस्ट और अगेंस्ट लिवरपूल या फिर कोई भी आप मतलब लेस्टर सिटी, जो हम जीते तो कोई फ्लूक ले या फिर कोई इंसिडेंट्स नहीं जीते. वी हैव विन विद टैक्टिक्स. मतलब एक सिस्टम लाया है ईटीएच ने, तो उस हिसाब से हमने खेला है और इम्प्रूव किया है वन गेम बाय गेम. तो मतलब एक अगर हम जीते अगर सिटी के अगेंस्ट, तो डेफिनेटली एक मैसेज जाएगा ऑल ओवर द वर्ल्ड और ऑल ओवर द पीएल और फैंस को कि वी हैव द सिस्टम, वी हैव द टैक्टिक्स, we have the players who are hunger for to play to win and have the right mindset to win the game. तो डेफिनेटली एक पॉजिटिव अप्रोच आएगा, एक मतलब मोरल जरूर बूस्ट करेगा. लेकिन आपने जो बोला कि मतलब पीएल जीतेंगे, तो अभी तो काफी दूर है, दिल्ली अभी बहुत दूर है. डेफिनेटली
तो अभिजीत भाई इज बीइंग रियलिस्टिक है, उनका मानना है कि हाँ हवा भी दिल्ली दूर है, which is kind of true, and perhaps City arguably are still Premier League preferred Premier League title winners this season. तो संदीप भाई, coming to you, आपसे मेरा सवाल ये है कि are we in contention of any silverware this season regardless of the fact that we win against City or not? क्या कोई अपने को मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कौन सा मिलेगा? So I think we should be in contention for the Europa League because it's the dead giveaway for getting into the Champions League next year. And because top four this season will be really interesting because Arsenal, Tottenham, and United are in good shape, and Chelsea, City, and Liverpool are the quintessential top three teams. So it will be a very interesting race, title for top four race. Title contention, Premier League title is out of bounds because it's a huge marathon, and we have just won a few couple 100-meter races. So Premier League will be out of contention as of for me. FA Cup and Carabao Cup teams have started taking really seriously. I think Manchester City have bought the Carabao Cup for them, and they keep it every year. So I don't know what will happen. Bought as with in that bought. one. They've bought. They bought it, yeah. I'm saying that only. And for the FA Cup, I think it will be interesting because the last two FA Cup exits were really bad against Chelsea and Leicester City, if I'm not wrong, the last two seasons. FA Cup will be interesting because I think FA Cup still has that, that shine, that heritage, that polish of the domestic cup. So I think our players would be up for it and hungry to win a silverware. FA Cup and Europa League, I think, are within our reach. So I think for final prediction, I think Europa League will be a silverware this year. So Sandeep Bhai wants Europa League. Very be interested to see us perform well in the FA Cup as well. और उन्होंने बहुत ही बड़ा इल्जाम लगाया, आरोप लगाया कि बस सिटी ने खरीद लिया है काराबाओ कप, और जो कि मजेदार है. Fortunately we don't have any City fans watching. I couldn't care less about them anyways. Saksham Bhai, your turn. Tell me about the score prediction, and with that, tell me about the scorers. Scorers and prediction. और अगर आपने करेक्टली गेस कर दिया तो आपको हम कुछ देंगे, कुछ तो देंगे. इसमें यार मैं ना थोड़ा ऑप्टिमिस्ट आदमी हूँ, तो मैं थोड़ा लेके चलूंगा यूनाइटेड जीतेगी, एंड आई एम प्रेडिक्टिंग अ बोल्ड स्कोर ऑफ 3-1, एंड द स्कोरर्स विल बी अ ब्रेस फॉर एंथनी 2 गोल मारेगा फ्रॉम द विंग्स and 1 from Rashford. If he plays, I think Rashford and Anthony would be on the score. So 3-1 by Saksham bhai. Very optimist आप लग रहे हैं. तो अगर आप optimist इतने हैं, तो what is your take on us being PL contenders if we thrash City like you say so? यार प्रीमियर लीग कंटेंडर्स होता है क्या, हमारे पास ना इतना स्क्वाड डेप्थ नहीं है. लिसांड्रो बैठ गया, टीम बैठ जाएगी, हमारा डिफेंस ही खत्म हो जाएगा. वहां पे मैगवायर और वरान फिर से वही पूरा की पूरी चीजें. मलाशिया गया, शॉ आया, फिर वो इनकंसिस्टेंसी शुरू हो जाएगी. और आपको ना प्रीमियर लीग जीतने के लिए जनवरी तक एक कंसिस्टेंट लेवल फुटबॉल खेलना बहुत जरूरी है. यहाँ पे इंजरीज होती है, टीम बिखर जाएगी. और ये भी नहीं है हमारा भैया कि हम जनवरी में बिल्कुल ही बहुत सारी साइनिंग्स कर लेंगे. मुश्किल से एक साइनिंग भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है. तो उसके लिए कंसिस्टेंसी धीरे धीरे 1-2 सीजन में डेवलप होगी. शायद ल्यूक शॉ उभर के आए, मैगवायर को जैसे टेनाक ने बोला, आई विल कोच हिम, ही इज अ टॉप लैड. तो देखते हैं कि डिफेंस में भी लिंडलॉफ और उस तरह की हमें कंसिस्टेंसी मिले. तो होप कि 2 सीजन बाद थोड़ा हम एक कंटेंडर पे जाएं. पर दिस मैच के लिए आई एम श्योर कि भाई हम जीतने वाले हैं. आई हैव सो मच होप फ्रॉम टेन हाग एंड मिनी पेप, उसे बायर्न में बोलते हैं. सो लेट्स सी. Yeah, so it's mini Pep versus it is OG Takla versus Fuzzy Takla. I wouldn't call him mini Pep. I will call him OG Takla. So ये हमारा आज के OG एपिसोड का दी एंड है. उम्मीद करता हूँ लोगों को बहुत पसंद आया होगा. और हाँ, we are going to be screening this match as you requested. We will be loud at Sky High Vasan Kunj. डिटेल्स के लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया रहेगा, सब कुछ दिया रहेगा, व्हाट्सएप दिया रहेगा. एज ऑलवेज अगर आप किसी की भी बात से कुछ भी डिसएग्रीमेंट है तो फिर उस डिसएग्रीमेंट को छुपाइए मत, बताइए चिल्ला के, और व्हाट्सएप पे आइए भाई. मेरे पास टाइम कम है तो आई एम क्लोजिंग दिस हियर. लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, कमेंट करना ना भूले.